Good morning, friends. In this video, I am covering one-way ANOVA test in statistics, followed by Turkey test. So let's start. One-way ANOVA, the full form of ANOVA is analysis of variance. Test is a statistical method used to determine whether there are any statistically significant differences between the means of three or more independent unrelated groups. सो अनोवा जो है वो थ्री और मोर इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड ग्रुप्स के लिए यूज होता है. नोट इंपॉर्टेंट नोट इज थिंक ऑफ इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द टी टेस्ट. While a t-test compares the mean of two groups, an ANOVA compares three or more. For example, you might use it to see if three different diets result in different amounts of weight loss, or if four different web designs led to different user engagement times. सो अनोवा जो है वो बेसिकली टी टेस्ट का एक्सटेंशन है. टी टेस्ट में हम दो ग्रुप का मीन कंसिडर करते हैं, बट अनोवा में हम तीन और तीन से ज़्यादा ग्रुप का मीन कंसिडर करते हैं. ओके, सो जो सिनेरियो मैंने अभी यहाँ पे लिया है समझाने के लिए वो है, इमेजिन यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनीज ग्लोबल वेब एप्लीकेशन. You want to see if the physical location of the cloud server, US East, EU West, or Asia Pacific significantly impacts the page load time measured in seconds for a simulated group of global users. So मैंने यहाँ पे तीन ग्रुप जो अनोवा थ्री और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए यूज होता है, मैंने यहाँ पे तीन ग्रुप्स लिए हैं: यूएस ईस्ट, ईयू वेस्ट एंड एशिया पैसिफिक. सो नल हाइपोथेसिस डिफाइन की है मैंने यहाँ पे. द एवरेज page load time is exactly the same across all three server locations. That is mu1 equal to mu2 equal to mu3. Any differences are just random noise. Alternative alternative hypothesis here: at least one server location has a significantly different average load time than the others. So null hypothesis में क्या होगा, जितने भी तीन लोकेशन है यूएस ईस्ट, ईयू वेस्ट एंड एशिया पैसिफिक, यहाँ पे सेम होगा उनका जो मीन होगा. बट अगर मेरा डेविएट कर रहा है किसी भी दो का, तो उस केस में हम अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे. दैट इज p वैल्यू के अकॉर्डिंग. So if the p-value is less than equal to 0.05, then we have to reject the null hypothesis. There is a statistically significant difference between at least two of the groups. So अगर p-value अपनी 0.05 से कम है या उसके बराबर है, तो हम अपनी null hypothesis को reject कर देंगे. Null hypothesis क्या था? Average load time is exactly the same for all the three groups. But अगर p value less than equal to 0.05 है, then there is a difference between at least one or more than one group. If the p value is greater than 0.05, fail to reject the null hypothesis. There is no statistically significant difference. अगर p value 0.05 से ज़्यादा आ रही है, then हम null hypothesis को reject नहीं कर सकते, and जो हमारा statistically significant difference है वो नहीं देखने को मिलेगा. If your ANOVA test is significant, that is p-value less than equal to 0.05, it tells you that at least one group is different from the other, but it won't tell you which specific groups differ. To find out, you would need to run a post hoc test like a turkey test. अगर p की वैल्यू 0.05 से कम है या उसके बराबर है, तो हमने नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट कर दी. दैट मीन्स कि ग्रुप्स में डिफरेंस है, बट ये अनोवा से किन ग्रुप में डिफरेंस है इसको हम फिगर आउट नहीं कर सकते. इस डिफरेंस को फिगर आउट करने के लिए हम एक टेस्ट यूज करेंगे, टर्की टेस्ट. अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा. अल्फा क्या होता है जो 0.05 हम जनरली कंसिडर करते हैं. अल्फा इज द मैक्सिमम रिस्क यू आर विलिंग टू टेक ऑफ बीइंग रॉन्ग. इफ यू क्लेम यू फाइंड द डिफरेंस. When you run a statistical test, you are trying to decide if a result is a real discovery or just a lucky fluke. If you set your alpha to 0.05 or basically 5%, you are saying, I will only celebrate and claim I found a real difference if there is a less than 5% chance that my data is just a random fluke.
If the data turns out to be so unusual that the odds of it happening by pure luck are 3%, you reject the fluke explanation and claim a real discovery. You took a small risk of being wrong, but it was below your 5.5% limit. So this is how alpha we take as 0.05. So आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा कि अनोवा क्या है, ये टी टेस्ट का एक्सटेंशन कैसे है, सिनेरियो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, नल हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे क्या दिया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या दिया है, पी वैल्यू की कंडीशन क्या दी है, और अगर अनुभव में अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है देन हम टर्की टेस्ट से उसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे कौन से ग्रुप्स एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, और अल्फा मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है. सो लेट्स कम टू अनोवा टेबल. सो यहाँ पे बेसिकली यूएस ईस्ट, ईयू वेस्ट और एशिया पैसिफिक में 10 सर्वे किया गया है. ठीक है, जो यहाँ पे डिफाइन किया था. फिजिकल लोकेशन ऑफ द क्लाउड सर्वर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द पेज लोड टाइम. सो यहाँ पे 10 वैल्यूज ली गई हैं. ओके, अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे अनोवा परफॉर्म करना है इन 10 वैल्यूज पे. सो यहाँ पे हमको डेटा टैब पे जाना है और यहाँ पे डेटा एनालिसिस चूज करना है. डेटा एनालिसिस यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है. अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पे फाइल पे जाना है, नीचे ऑप्शंस पे जाना है, एड-इन्स पे जाना है, और यहाँ पे आप एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको ओके करोगे. अगर आप ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डेटा टैब में शो करेगा. ठीक है, ये एक ऑप्शन है अगर डेटा टैब में डेटा एनालिसिस शो नहीं कर रहा है. ऑप्शंस पे जाके एड-इन्स में जाके एनालिसिस टूल पैक, देन क्लिक ऑन ओके. अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है. सो डेटा टैब पे जाना है, डेटा एनालिसिस पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज करना है एनोवा सिंगल फैक्टर एंड ओके पे क्लिक करना है. ये यहाँ पे रेंज मांग रहा है. ठीक है, तो रेंज मैंने क्या दिया है, ये जो वैल्यूज हैं ये मेरी रेंज हो गई. प्रेस एंटर. ग्रुप बाय मैंने यहाँ पे कॉलम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 कॉलम कंसिडर किए हैं, यूएस ईस्ट, यू वेस्ट एंड एशिया पैसिफिक. अगर मैं यहाँ पे रो कंसिडर करता तो मैं ग्रुप बाय को रोज कर देता. लेबल पे अनटिक नहीं करूंगा तो ये यूएस ईस्ट और यू वेस्ट और एशिया पैसिफिक को कंसिडर नहीं करेगा. लेबल पे मैंने अनटिक किया है, सॉरी टिक किया है, देन ये ओनली वैल्यूज कंसिडर करेगा. अगर मैं लेबल पे अनटिक कर दूंगा देन ये लेबल वैल्यूज के साथ जो ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हैं उनको भी कंसिडर करेगा. तो अभी यहाँ पे अपने को लेबल पे टिक करना है क्योंकि मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट की है. अल्फा की वैल्यू 0.05 है. इसको आप चेंज भी कर सकते हैं बट जनरली ये 0.05 ही कंसिडर की जाती है. मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि व्हाई इट इज टेकन एज 0.05. देन आउटपुट रेंज कहाँ पे चाहिए आपको. सो आउटपुट रेंज मेरे को जो टेबल चाहिए वो मैं न्यू वर्कशीट में भी ले सकता हूँ, अलग वर्कशीट में आएगा, न्यू वर्कबुक में ले सकता हूँ, या फिर मैं आउटपुट रेंज के लिए एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर सकता हूँ. लेट्स से मुझे आउटपुट रेंज F8 पे चाहिए. मैंने F8 पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे F8 पे क्लिक कर दिया. प्रेस एंटर एंड ओके. सो ये अपना अनोवा का टेबल आ गया जो भी अभी हमने वैल्यूज परफॉर्म की थी. अभी यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप्स हैं अपने, समरी आई है यहाँ पे अनोवा सिंगल फैक्टर की. काउंट यहाँ पे अपना 10 है. सम इसने सम किया है जो भी यहाँ पे यूएस ईस्ट, यू वेस्ट एंड एशिया पैसिफिक की वैल्यूज हैं, फिर उसका उसने एवरेज किया है, देन उसका वेरिएंस निकाला है. फिर यहाँ पे उसने अनुभव में सोर्स ऑफ वेरिएंस लिया है, देन एसएस लिया है, सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज, देन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे एमएस है, यहाँ पे फैक्टर है, क्रिटिकल फैक्टर, यहाँ पे पी वैल्यू है, यहाँ पे एफ क्रिटिकल है. सो ये वैल्यूज इसने बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट की हैं. अपने को सिर्फ पी वैल्यू कंसीडर करनी है फॉर टाइम बीइंग.
एंड उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एमएस भी कंसिडर करेंगे। मैं बताता हूँ अभी आगे कैसे होगा। सो पी वैल्यू अपनी यहाँ पे आई है 9.5491 e minus 12। e minus 12 in Excel generally is written as 10 to the power minus 12। सो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज बेसिकली 9.54 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सो इसको लिख सकते हैं 0.11 एंड 95। अभी भी ऐसे दिखा रहा है, इसको हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, जनरल पे जाके हम इसको डिलीट करेंगे, देन इसको हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो ये अपनी पी वैल्यू आई है। आई होप ये क्लियर होगा। जब भी e -12 समथिंग होता है देन इट मीन्स एस 10 टू द पावर -12। सो p वैल्यू अपनी ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो आई है, इट इज लेस देन इक्वल टू 0.05, जो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लिया था। p वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05, देन वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या लिया था कि exactly the same across all the server locations average page load, बट अपने केस में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0.05 से वैल्यू अपनी कम आई है। सो यहाँ पे अपनी ये वैल्यू अभी कम आई है, एंड हम चलेंगे टर्की टेस्ट से टू फिगर आउट कि किन ग्रुप्स की वैल्यू की वजह से अपना डिफरेंस आ रहा है। तो टर्की टेस्ट के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, the formula used to calculate the critical threshold value for a significant difference between any two group means is HSD is equal to Q into square root of MS within divided by N। ये टर्की टेस्ट की टेबल है जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम और के हॉरिजॉन्टल पे के है एंड वर्टिकल पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है। ये आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है। आप 0.05 की जगह अगर कोई और भी अल्फा की वैल्यू है, आप उसके लिए भी इस टेबल को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, तो उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। अब एच एच डी क्या है, द honest significant difference if the absolute difference between any two group means is greater than this HSD value, those two groups are significantly different from each other। बेसिकली अगर मैं यूएस ईस्ट और यू वेस्ट का डिफरेंस निकालता हूँ और ये मेरे अगर एच एच डी की वैल्यू से ज़्यादा है, देन इन दोनों ग्रुप में डिफरेंस है। अगर मैं ईयू वेस्ट और एशिया पैसिफिक का मीन निकालता हूँ और इसका अगर जो डिफरेंस है वो एच एच डी की वैल्यू से ज़्यादा है, देन इट इज़ अ difference between these two। So Q is equal to the standardized range statistic. This value is found using a standard difference table called the Turkey Q table based on your significance level alpha, the total number of groups K, and the degree of freedom within groups DF within। So ये basically Q की वैल्यू कैसे फिगर आउट होती है, ये उसके बारे में यहाँ पे लिखा है अभी। तो बेसिकली आपको टर्की की क्यू टेबल देखनी है जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अटैच की हुई है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और के की जो वैल्यू है उसको कंसीडर करना है। ms within is equal to the mean square within, also called ms error। You pull this number directly out of your excel ANOVA output table, n is equal to the sample size per group। सो HSD का ये फॉर्मूला है। अब अपने केस में k की क्या वैल्यू है, k इज बेसिकली द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे अपने पास 3 कॉलम है। सो के की क्यू के की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गया। अनोवा से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या कैलकुलेट किया विद इन ग्रुप्स में, इट इज 0.27 DF 27। सो टर्की क्यू टेबल से अपने को फिगर आउट करना है 3 और 27 पे वैल्यू कितनी है। दिस इज 3.506। 3 इज दिस 3 आए एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे अपने 27 देखना है, सो वैल्यू इज 3.506। सो क्यू की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगी। अपने को के देखना है विच इज नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड
डीएफ की वैल्यू देखनी है, दोनों को कंपेयर करना है। सो एच एस एम एस विद इन इज इक्वल टू this value ms within groups the value is 0.040. So q की वैल्यू फिगर आउट हो गई, ms within की वैल्यू फिगर आउट हो गई, n is basically is equal to number of observations. So in our case, uh, 10 values are there, so n value is 10. So apply, put the value in this formula, hld is equal to q, which is 3.506 into ms within is 0.040 divided by 10 का square root. So value comes out is 0.22. HSD value is 0.22. Now we have to find the mean of US East minus EU West. So 1.35 and 1.93. We have to take a absolute value here. We don't want to consider a negative value. So 1.93 minus 1.35 and absolute value, which is equal to 0.58. Now mean of EU West minus Asia Pacific. EU West is 1.93 minus 2.45. Value is minus 0.52, but we have to consider the only absolute value. We have to take a mod of minus 0.52, which is 0.52. Then mean of Asia Pacific minus US East, which is here 2.45 minus 1.93, which is again, sorry, 2.45 minus 1.35, which is 1.1. So I calculated the mean of all the three groups. Now I have to compare this mean with HSD value calculated here. HSD value is 0.22 and mean of US East minus EU West is 0.58, which is greater than 0.22. Mean of EU West minus Asia Pacific is equal to 0.52, which is greater than 0.22. Mean of Asia Pacific minus US East is equal to 1.1, which is greater than 0.22. So all the three mean values I calculated are greater than 0.222, which is HSD value. That means US East and EU West are different from each other. Mean of US East and EU West are different from each other. Mean of EU West and Asia Pacific are different from each other, and mean of US East and Asia Pacific are different from each other. That's why we reject the null hypothesis, because p value is less than or equal to 0.05, and after that I calculated the one factor ANOVA. Then here p-value is less than point equal to 0.05. So टर्की टेस्ट मैंने परफॉर्म किया. टर्की टेस्ट का फॉर्मूला है q अंडर रूट एम एस विद इन अपॉन एन. अगर ये वैल्यू जो भी है इसको फिर हमको मीन की वैल्यू से कंपेयर करना है. ठीक है, यहाँ पे अपने मेरे केस में तीनों वैल्यू 0.22 से ज़्यादा आई है. हो सकता है एक वैल्यू 0.22 से ज़्यादा है. अपने को अगर एक भी वैल्यू एच एच डी की वैल्यू से ज़्यादा है, दैट मीन्स दोज टू पर्टिकुलर ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. That's why we reject the null hypothesis. So I hope you understand how to calculate one factor ANOVA in MS Excel, and if p-value is less than or equal to 0.05, that is reject the null hypothesis, then how we can find which two groups are different from each other by Turkey test. Okay. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel to watch more videos in the upcoming days in statistics and supply chain and other topics. Thank you for watching this video.